السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہماری کلاس ایک دن پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس میں حروف ترجیح جیسے حروف ہجا کہا جاتا ہے، تو اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی. اس میں صرف یہ فرق ہم نے کیا تھا کہ الف اور حمزے میں کیا فرق ہے، اور الف اور حمزے کا فرق یوں ہمیں جاننا چاہیے کہ الف کی آواز کسی بھی لفظ کو پرولونگ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور حمزہ جو ہے ان کو اس کی ساؤنڈ بنانے کے لیے. تو وہ ہم کرا چکے تھے. اور ماشاء اللہ سب کو عربی کے جو ساؤنڈ ہے لفظ کی وہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی جس کو اگر نہیں ہے ایک دفعہ پہ وہ کر دیتے ہیں کہ بالکل اردو کے ساؤنڈ کی طرح عربی کی ساؤنڈ ہے، لیکن سوائے جہاں پہ تے اے کی آواز آ رہی ہو وہاں پر ہم اسے آ کی آواز کہتے ہیں، جیسے با تا سا اس طرح. اور جھیل چے باقی سب ہوتا ہے، جیسے رے ہے تو را، ٹھیک ہے. تو یہ فا فے ہے فا، بس باقی سب سے یہ ہے تو یا. تو ہم لوگ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اب میں پوچھوں گا یہ کیا لکھا ہے، اور یہ با با اور یہ یا. یہ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسے بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ جو اردو پڑھنے والے ہیں جو پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں اور جن کو پریکٹس نہ ہو تو وہ اس کے لیے میں نے اچھا ہم نے وہ حروف ہجا جو تھے وہ پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے کچھ حرکات بتائی. ہم نے آپ کہ حرکات جو ہے پیش زبر زیر، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں اور فارسی میں بھی ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو ضمہ کہتے ہیں. میں پڑھاؤں گا آپ کو اردو میں زیر روز کے حساب سے، لیکن صرف بتانے آپ کو تک نہیں. کبھی کہیں آپ کو موقع ملے گا، آپ کا شوق ابھرے گا کہیں اور جا کے پڑھیں، وہ جب ضمہ کہیں تو آپ کو ذہن رکھنا چاہیے کہ ضمہ کے معنی پیش ہوتے ہیں. زبر کو فتح کہتے ہیں، فتح، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. زیر کو کسرہ. اچھا ضمہ فتح اور کسرہ، ٹھیک ہے. پیش زبر زیر، یہ ایک ہو گیا. لیکن میں پڑھاؤں گا آپ کو زیر زبر رہ کے، تاکہ اس سے آپ فیملیئر رہیں، اس لیے آپ کو آسانی رہے گی. اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسان سے آسان کریں تاکہ آپ آج کچھ لے کے اٹھیں اور آپ آج ہی کہیں کہ واقعی آج تو ہم گھر پہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم جملے بنائے. تو دوسری جو حرکات ہوتی ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کا مطلب ہے کہ وہ حرکات میں ایک نون کی ساؤنڈ ہے پیش کی جاتی ہے. جیسے بے پیش بو ہوتا ہے تو دو لگا ہوگا تو بے پیش بن ہوتا ہے. یہ دوسرا جو پیش ہے یہ ان کی آواز دے گا. اسی طرح زبر ہے جیسے، تو زبر کی آواز دوسری زبر کے بعد نون کی آواز دے گا تو ان، اور زیر کے بعد ای ہوتی ہے، اور دوسرے جو زیر ہے اس کے بعد ان. تو آپ اس کو پڑھیں گے ان ان. اور آپ چونکہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہ ہم نے جیسے ایک کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے کہا محمدن، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہم نے کہا محمدن، اور ایک جگہ ہم نے جب درود شریف پڑھے تو محمدین تھا. تو یہ جو ہے یہ وہ حرکات ہے جن کے حروف کے ساتھ جب حرکات ملتی ہے تو لفظ بنتا ہے. حروف کے ساتھ جب حرکات بنتی ہے تو لفظ
जो है दो किस्म का होता है। एक तो मैं लफ्ज़ बोलूँ मस्जिद, आपको समझ में आ रही है, मैं कहूँ घर, आपके समझ में आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं बामानी, यानी जो भी लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं आपको इस्म का, वो ना आपके समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि बेमानी होते हैं, वो हमारी ज़बान में तो बहुत है। जैसे मैं कहता हूँ पानी वानी पिया, चाय वाय पियोगे, रोटी शोटी खाओगे, इस किस्म के जो रोटी के साथ रोटी लगाए वो बेमानी है। लेकिन हमारे लिए एक आसानी ये है कि अरबी ज़बान में कोई बेमानी लफ्ज़ नहीं है, इसलिए बेमानी लफ्ज़ को हम क्रॉस कर देते हैं, हमें पढ़ना ही नहीं। ठीक है, हरफ हरूफ हरकत से लफ्ज़ बना, लफ्ज़ के दो हिस्से थे कि बेमानी एक समझ में आ रहा था, एक बेमानी। अरबी ज़बान में बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, तो आसानी ये होगी कि हम सिर्फ बेमानी रख दें। बेमानी जो है, बामानी जो लफ्ज़ है, बामानी मानी वाला लफ्ज़ जो है उसको अरबी ज़बान में कलेमा कहते हैं, नाम के सिद्ध से कलेमा। ठीक है, कलेमा जो है, कलेमे को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो इंग्लिश में अगर कहेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच आपने इंग्लिश में पढ़ी थी कि आर्ट होती है, लेकिन अरबी ज़बान में पार्ट ऑफ स्पीच जो है 3 है। ठीक है, फारसी में भी 3 है, उर्दू में भी 3 है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये एक तो है इस्म, जिसे हम कहते हैं कंपेटेबल नाउन की तरह है, लेकिन ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि ये नाउन से बहुत वसी है। फिर फेल जो है ये इसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, हरूफ हैं, ये हरूफ वो होते हैं जो अपने मानी जो है अगर लिखा जाए तो जब तक किसी के साथ मिलेंगे नहीं तो बयान होगा। अब से बाद में एक मिसाल, जैसे इन है, इनके माने उर्दू में देव, मैं इन 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 बोलता हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आता, या उर्दू में कहता हूँ में, तो आपको कुछ समझ में नहीं। मैं कहूँ घर में या इन द हाउस, तो आपके समझ में आए। जब तक हम इसको किसी लफ्ज़ से या फेल से नहीं मिलाएंगे हमें वो उसके मानी समझ में नहीं आएंगे। तो हरफ क्या आपने ये देखा है, इस्म की जो डिफिनेशन है उससे इंग्लिश से थोड़ी मुख्तलिफ यूँ है कि जितनी भी आज जो पार्ट ऑफ स्पीच में उसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी चीज़ें वो सब इस्म में आके कवर हो जाते हैं। तो इस्म का बहुत होता है। इस्म जैसे इस्म माने होता है, मतलब आपकी इसकी ग्रामी, तो आपका ही नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम, चीज़ का नाम हो, आदमी का नाम हो, शहर का नाम हो, शहर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम, यहाँ तक कि अरबी ज़बान में जो फेल होता है, फेल के नाम को भी इस्म कहते हैं। और फेल के लिए ये है, उस वक्त तक फेल नहीं कहा जाएगा अगर उसमें ज़माना आ जाएगा। ज़माने से मुराद है पीरियड, जैसे इंग्लिश में हमने टेंस पढ़ा था, टेंस, तो उसमें हम जैसे वो लफ्ज़ बोले तो आपको पता चले कि ये तो बात ही नहीं हुआ था। मैं दूसरा लफ्ज़ बोलूँ आपके लिए तो हाल का लफ्ज़ है, मैं एक और लफ्ज़ बोलूँ तो आपके लिए मुस्तक़बिल का लफ्ज़ है, तो वो फेल कहलाएगा। जो लफ्ज़ है अगर उसमें कोई भी टेंस लगे, जैसे मैंने कहा खाया, इससे क्या तस्वीर, माजी क्या खा रहा है, करेंगे हाल का, और मैं खाऊंगा, तो जब तक ये वो पीरियड नहीं आए, टेंस नहीं आए, तब तक वो फेल लेकर आए। इसीलिए जो एक्शन वर्ड है आमतौर पर वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड ये वर्ब नहीं होता। एक्शन में खाना, पीना, सोना, जागना, इसमें कोई पीरियड आया नहीं आया, नहीं आया तो ये फेल का नाम है। इसको मस्दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्दर। फेल का जो नाम होते हैं उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर, ठीक है, तो वो हम उसको मस्दर कहेंगे। हरफ के मतलब मैंने बता दिया आपको। तो अब यह है कि हमने इस्म, फेल, हरफ, तो हम सबसे पहले इस्म पढ़ेंगे। इस्म पढ़ने के लिए हमें लाजमत है कि
कोई भी लफ्ज़ के बारे में इल्म होगा तो हम उसके मुताबिक जुमला बना सकते हैं। तो जैसे कोई लफ्ज़ है, मैं दीवार क्या करती हूँ, उर्दू की बात, मैंने कहा दीवार। अब दीवार के मुताबिक मुझे ये पता होना चाहिए दीवार को उर्दू ज़बान में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करता है या मुअन्नस के, ठीक है। फिर एक और चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि दीवार सिंगल है यानी वाहिद है या जमा है। अगर ये नहीं पता है तो मैं जुमला गलती करूँगा। फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी है ना स्टेटस क्या है, ठीक है। स्टेटस से मान के ये किस पोजीशन में जुमले में लाएंगे, ठीक है। या आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जब हम कहते हैं कि हमें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इसलिए कि ये क्यों जरूरी है कि जब भी हम किसी जुमले को बनाना शुरू करें उस लफ्ज़ के मुताल्लिक़ हमें 4 बातों का जानना बेहद। पहला, वसत मानी काइंड का नहीं, सिर्फ किस्म भी कह सकते हैं। वसत यानी वो नकरा है या मार्फा है। नकरा मार्फा का नाम सुना, डेफिनेट इनडेफिनेट। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है जिन्स। जिन्स हमारे वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये पता होना चाहिए। या अगर कोई चीज़ है तो हम उसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या मुअन्नस के तौर पर। जैसे कलम, कलम में इसमें मुज़क्कर मुअन्नस तो कोई होता नहीं, नरमादा तो नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को हम कभी मुज़क्कर के और कभी मुअन्नस के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी अदद। अदद में ये है कि वाहिद और जमा। अरबी ज़बान में 2 से ज़्यादा को जमा कहते हैं, हमारे यहाँ 1 से ज़्यादा को जमा कहते हैं। हमारे उर्दू में और इंग्लिश में 1 से ज़्यादा हो तो जमा हो जाता है, लेकिन अरबी में 2 से ज़्यादा हो तो जमा करते हैं। 2 को मुस्ना या तस्निया कहते हैं। 2 के लिए एक हर्फ होता है, हर हर्फ के साथ एक इजाफा करते हैं, उसके माने होते हैं ये 2 है या 2 कर होते हैं। और 2 से ज़्यादा होता है तो हम जमा के लिए जो हर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करके इस्तेमाल करते हैं। फिर ये अदद का हो गया। अराब। अराब ये होता है कि फ़र्ज़ क्या कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर है हामिदुल लिखा हुआ है या हामिदन लिखा हुआ है, हामिदीन लिखा है, तीनों के माने हामिदी है। हालांकि शक्ल आप देख रहे हैं इसमें 2 पेश लगा हुआ है, इसमें 2 ज़बर और अलिफ का इजाफा है। समझ में आ रहा है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, क्लियर अभी तक? अच्छा, यहाँ हामिदीन 2 देर लगा हुआ है। तो किसी भी अराबी हालत में स्टेटस में तब्दीली से मानी तब्दील नहीं होता, उसका स्टेटस तब्दील होता है। ये जो है रफ़ा जो है पर इसकी अराबी हालत की 3 किस्में, रफ़ा, नसब और जर। अब इनमें रफ़ा से आप थोड़ा बोलेंगे रफ़ा क्या है, नसब क्या है, जर क्या है। तो इंग्लिश में जब हम लोग बड़े फ़ख्र करते हैं कि हमें इंग्लिश को आती है, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव केस। ये रफ़ा जो है सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव और ये पॉजेसिव केस। उर्दू में फ़ाइली हालत यानी कि वो लफ्ज़ जो है डूअर है, काम करने वाला है। जैसे अहमद है, अगर अहमद काम कर रहा है तो हम उस पर 2 पेश लगाएंगे। अब ये मफूली हालत में है यानी ऑब्जेक्टिव पोजीशन में स्टेटस में है, तो हम क्या करेंगे उस पर 2 ज़बर अलिफ लगाएंगे, उसको पता चलेगा ये इसके काम का असर है। फिर मज़ीद ये कि उस फेल की हम मज़ीद वो करेंगे, उसके बारे में बताएंगे तो पॉजेसिव केस होगा।